पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली बन जाता है। दस में ही पैसा कारोबार करेंगे ओके तो आप सुकून से रहेंगे। ठीक है, पहले तो ऑफिस जॉब थी 9 to 5 सारा दिन बैठे रहो। ठीक है ना, अब उससे ज़्यादा कमा रहे हो। सबसे पहले तो आपका 3 साल का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद आपको एक और लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है जो कि TFL जिसे ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन कहते हैं, वो देते हैं आप। अच्छा TFL आपको क्यों जरूरी होता है अंकल इधर? TFL ही तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अच्छा ठीक है, वही तो लाइसेंस इशू करते हैं आपको। नहीं ये TFL जो उनसे आपको नॉर्मल लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप या? ना वो टैक्सी का बैच होता है। अच्छा ओके, ये दिखा सकते हैं आप? जी नाम नहीं। ओके चल ठीक है, ओके उबर के अलावा यहाँ पे बोल्ट है, ओके। एक और कंपनी है फ्री नाउ, हाँ एक कंपनी है ओला, लेकिन उबर जो है वो लीडर है इसमें। उबर इज द बेस्ट। या उबर और बोल्ट। लो चैंपियन, उबर आ गई है हमारी और अब हम उबर में जाने लगे हैं। अंकल जी विद योर परमिशन सारी टेस्ला की वीडियो बना ली है अंदरों? जी बना चुका है। अंकल कितना टाइम हो गया जी टेस्ला साढ़े कोल चलाते? 4 महीने हो गए। पहले किहड़ी गड्डी हुंदी सी? मेरे को डिफरेंट गड्डियां हैं। पहले मैंने मर्सिडीज, उसके बाद एक और पासाट अपने नाम से पासाट, हाँ जी वोल्क्सवैगन या अच्छा चैंपियन एग्जीबिशन ते आए सा। एग्जीबिशन तो हुण ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਬਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਕਲ ਰਿਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਈ ਟੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਬਰ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਲਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ LCD ਲਾਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ TV ਟਾਈਪ, ਸਾਰੇ YouTube ਆ ਰਹੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਵੈਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਸਾਟ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਤੇ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਤੇ एनवायरमेंट से अच्छी गड्डी ओके। और तीसरा वैसे भी डिमांड है। अगर दूसरी गड्डियाँ जो है ना बात 15 पाउंड ना देना पड़ता सेंट्रल लंदन ड्राइव करने तो पर डे। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰੋ ਤੇ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? 100 ਪਾਉਂਡ ਫਿਊਲ ਵੀਕ ਦਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਟੈਸਲਾ? डिफरेंट चार्जिंग पॉइंट लगे थे लेकिन रास्ते पे तो सा नजर आ सकते। हाँ लेकिन मैं हमेशा टेस्ला द चार्जिंग पॉइंट पे चलता, टेस्ला द एक्सक्लूसिव चार्जिंग पॉइंट, ਯਾਨੀ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲਵਾਈ ਹੈ ਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਹਦੀ? ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ 7 ਵੋਲਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਦੀ? ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲਾ ਲਓ। ਓਕੇ, ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। 20 ਮਿੰਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਰ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ 6 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, 10 ਇਅਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਸੀ ਜੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ 0 ਮੀਟਰ? 0। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਡਲ 3 ਹੈ, 50,000 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 330 334 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ 300 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ, ਹਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਗਦ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਸੀਂ 10-15,000 ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ? मंथली जो है ना जी 615।
ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ Amazon ਵਗੈਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਉਬਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰੇ ਉਬਰ ਦੀ, 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ 5 ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਡੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਵੀਕਲੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 175 200 ਪਰ ਡੇ। ਪਰ ਡੇ। ਓਕੇ, ਸੋ 12 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 300। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਓ ਤੇ 150 ਤੋਂ 200 ਐਵਰੇਜ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 300 ਪਾਉਂਡ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਵੋ 200 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 1000 ਬਿਟਵੀਨ 1400 ਪਾਉਂਡ ਈਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਘੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੋਈਏ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਬਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਟੂ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਬਈ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ 15 to 20 ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਦੇ। ਅੰਕਲ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ 4 to 5000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ 200 ਪਾਉਂਡ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੇ, ਅੱਛਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਯੈਸ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ 200 ਪਾਉਂਡ 200 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੈਂਦਾ ਵੇ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀ ਡੇ। और एवरी डे एक चार्जिंग कितने किलोमीटर करती है, कितने माइल करती है? 300 मील करती है। अच्छा, 15-20 पाउंड ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰजिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ 600 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰजिंग ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਥਲੀ। ਇਜ਼ ਐਮ ਰਾਈਟ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੀਅਰ ਇਨ ਲੰਡਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਪਾਉਂਡ ਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਛੋੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1500 ਤੋਂ 1800 ਪਾਉਂਡ ਅਗਰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸੋ जिस जगह पे तुसी रह रहे हो, अगर आप उस जगह से अर्निंग कर रहे हो, उसी करेंसी में कर रहे हो ना, तो आपके एक्सपेंस भी उसी लोकेशन के हिसाब से हैं, ठीक है। अगर आप, हाँ ये जो चीज़ मैंने आपको कितनी दफ़ा बताई भी है कि भी आप कमाओ डॉलरों में, यूरो में, पौंडों में, खर्च करो रुपयों में, ठीक है।
तो फिर जो है ना आप किंग हो कि भी अपने मुल्क में रह के अगर आपको 5-10 लाख रुपया महीना आ रहा है तो फिर अपने ही मुल्क में रहोगे, अपने रिश्तेदारों के पास रहोगे, आप अच्छी जिंदगी बसर कर लोगे क्योंकि आपकी इनकम जो है वो हार्ड करेंसी में है और आपकी जो से एक्सपेंस है आपकी रुपयों में है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट बिजनेसेस, जिस तरह आज आपको फूड की एग्जीबिशन दिखाई है, एग्जीबिशन के अंदर जो आपको बिजनेस आइडियाज दिए हैं, उस तरह आप यहाँ से एक सप्लायर से चीज पकड़ के दूसरे क्लाइंट को आप बेचना शुरू करो, अपना एक सेल्स का नेटवर्क बनाना शुरू करो, अपनी एक प्रोडक्ट की रेंज बनाना शुरू करो, अपनी जो सी नीश कैटेगरी है उसको चूज करो। हर बिजनेस में पैसा है, हर बिजनेस को आपको करने का सिर्फ एक फॉर्मूला और बेसिक सेंस होनी चाहिए, जो कि अभी आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अंकल ने आपको पकड़ के जो है ना पूरे की पूरी ऊबर का ये 15-20 मिनट के अंदर निचोड़ जो है ना जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए वो अंकल ने बता दिया है। ठीक है, बेसिकली अंकल आप बताएं, बेसिकली अगर किसी ने पाकिस्तान में ऊबर का काम शुरू कर रहा है, सारी बात है काफी सारे पाकिस्तान में ऊबर का काम तो कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो एक ऊबर का ड्राइवर को चाहिए, जो आप उनको एडवाइस दे सकते हो? साल का तो नहीं पता जी, इधर का पूछा। हाँ चलिए इधर का बता दें आप। सबसे पहले तो आपका 3 साल का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद आपको एक और लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है जो कि TFL, जिसे ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन कहते हैं, वो देते हैं आपको। अच्छा, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है जब आपने ऊबर वगैरह, टैक्सी वगैरह? ऊबर तो एक ऑपरेटर है ना। अच्छा ठीक है, ऊबर जो है ये तो एक डिफरेंट ऐप है ना। अच्छा, TFL आपको क्यों जरूरी होता है अंकल इधर? TFL ही तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अच्छा ठीक है, वही तो लाइसेंस इशू करता है आपको। नहीं, ये TFL जो है आपको नॉर्मल लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप या? ना वो टैक्सी का बैच होता है। अच्छा, ओके, ये दिखा सकते हैं आप? जी नाम नहीं। ओके चल ठीक है, ओके ठीक है। तो ये TFL का लाइसेंस लेकर फिर उसके बाद आप किसी भी ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। जी। अच्छा अंकल, यहाँ पर कितने ऑपरेटर हैं ऊबर के अलावा? ऊबर के अलावा यहाँ पे बोल्ट है, ओके, एक और कंपनी है फ्री नाउ, हाँ, एक कंपनी है ओला, लेकिन ऊबर जो है वो लीडर है इसमें। ऊबर इज द बेस्ट। ऊबर और बोल्ट। अच्छा, तो हम हर किसी के साथ कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भी आपके पास जब TFL की परमिशन आ गई तो आप एक टाइम में दो जितने भी सारे सबके साथ आप काम कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये जो सी ऊबर हो गई, बोल्ट हो गई, इनसे ये जो उनसे प्राइवेट टैक्सी है, जिस तरह आप काफी दफा पाकिस्तानी भाई होते हैं ना कि वो आपने एयरपोर्ट की सर्विस लेनी हो तो वो आ जाते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है अंकल? वो इलीगल है ना। वो इलीगल है, वो आपकी इंश्योरेंस नहीं कवर करती है। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप कैसे अच्छा, आप कवर है, इस वक्त बैठे हुए हाँ, 1 मिलियन पाउंड के हम दोनों कवर है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बगैर बुकिंग के आपको उठाऊंगा तो इंश्योरेंस इनवैलिड। नहीं अंकल, मैं वो टैक्सीज की बात कर रहा हूँ जो ये आपने देखी है, क्या नाम है उसका, ALI। अच्छा ठीक है, हाँ, क्या नाम? वो लीगल है लेकिन वो इतना वो है नहीं। आई मीन इनमें फर्क क्या है? फर्क सेम, ऊबर बिग है, हाँ, वो छोटे ऑपरेटर। ओके, यानी उनको भी लाइसेंस जो है ना अप्लाई करना पड़ता है, उनको भी लाइसेंस TFL देता है, ऊबर को भी TFL देता है। ओके, ऊबर को, ऊबर बोल्ट वगैरह इनको भी अपना लाइसेंस, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लाइसेंस, हाँ, कि वो ऑपरेट करते हैं। हाँ, वैसे नहीं है कि वो ऊबर जो है वो एम्प्लॉयर नहीं है ना, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड। जी। तो इसी तरह से वो छोटे हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं है, तो उनके पास 20-25 गाड़ियां होती हैं। ओके। तो अंकल, जो ऊबर है, यानी आपने लाइसेंस ले लिया, इसके बाद की जो सी जरूरत है आपकी गाड़ी अपनी होनी चाहिए। हाँ, गाड़ी अपनी। ठीक है, गाड़ी आ गई तो उसके बाद यानी आप फिल फॉर जोन से है ऊबर के साथ रजिस्ट्रेशन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा? कोई नहीं, वो पुलिस चेक तो है ना। पुलिस चेक से क्या मतलब अंकल? जहाँ पे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। अच्छा, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ओके, वो रिकॉर्ड आपने प्रोवाइड करना था ऊबर वालों को? नहीं, वो खुद ही पुलिस प्रोवाइड करती है। अच्छा, यानी आपने कहीं रिक्वेस्ट करनी होती है उसकी? ठीक है, तो इसके बाद आपका कोई यानी ऊबर के साथ तो नहीं कोई किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह, कोई परमिशन, कोई लाइसेंस? कोई भी नहीं। वो पहले करवाया करते थे, लेकिन अब सभी लोग खुद ही कर लेते हैं। तो यानी ये सारे, और कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के भी आपसे वो फीचर वगैरह मांगते हैं कि आपकी इंश्योरेंस में ये वाली चीज जो है इंक्लूड होनी चाहिए? बिजनेस इंश्योरेंस।
अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें इंश्योरेंस की एजेंसी है वो नॉर्मल वो यानी? आपकी जो कस्टमर हम पिक करते हैं उसकी हर चीज़ कवर होती है, उसका सामान एवरीथिंग। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है अपनी गाड़ी के ऊपर यानी ये जिदो मर्जी शटर ऑन करो, जिदो मर्जी शटर ऑफ करो, है जी। बिल्कुल। और साफ सुथरा काम है। जा। तो अपनी फैमिली की बंदा जो सी है ना, वो बच्चों को स्कूल भी छोड़ा है, बच्चों को स्कूल भी ले आया है, ऐसे ही तो इजी यानी कोई किसी किस्म का आप अपने आप ओनर हो, मालिक हो, जा। तो किसी की यानी आपको टाइम की पाबंदी नहीं है इस काम में। बिल्कुल। साफ सुथरा काम है। बिल्कुल साफ। अंकल आपको कितना टाइम हो गया इस काम में? मैं कुछ और करता था, फिर मैंने जब पेंडेमिक आया तो ये स्टार्ट किया। अच्छा, यानी 2-3 साल तो हो गया ना फिर ऑलमोस्ट? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ओके, तो अंकल आप 5 साल हो गए। वैसे क्वेश्चन है, यू नो क्वेश्चन नॉट यानी स्टूपिड क्वेश्चन कोई भी नहीं होता, तो आप कैसा फील करते हो इस काम में? यानी अच्छा लगता है? ये तो बहुत अच्छा है। पहले तो ऑफिस जॉब थी, 9 to 5 सारा दिन बैठे रहो, अब उससे ज्यादा कमा रहे हो। अच्छा, और पीस ऑफ माइंड है पीस ऑफ माइंड और साफ सुथरा काम। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल आप कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे सारे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? सारे पढ़ रहे हैं। जबरदस्त, तो ठीक हो गया। हमारे बच्चों को बिजनेस एडवाइस देना चाहो जो थोड़ी सी आपके सेक्टर से हटके भी हो, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई एसेट हो जो आपको कि यार है मैं बच्चों को देया, अगर इतने थोड़ा जा भी कोई अमल कर ले, चलो मेरे वास्ते और कोई नहीं तो सदका जारी है सही। अगर आप पाकिस्तानी बच्चों का कहते हैं तो फिर हाँ, पाकिस्तानी बच्चे। जी हाँ, सबसे बड़ी पहली बात तो ये ना जी, बिजनेस में ही पैसा है। कारोबार करेंगे ओके, तो आप सुकून से रहेंगे, ठीक है ना। जॉब जो है ना वो भी ठीक है, उसमें सिक्योरिटी है, लेकिन बिजनेस में ये है कि आप जितने पैसे आपका जी करे आप कमा सकते हो, मेहनत करें। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि आजकल तो सारा ऑनलाइन चल रहा है, आपके पास अमेज़न जी जी जी, कोई एक प्रोडक्ट देख लें, ठीक है, जैसे सभी लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, ये इस तरह का उन्हें सिखाएं जरा। तो अंकल जो बच्चे वीडियो आपके देखेंगे ना, इनको बेसिक ट्रेनिंग हम दे रहे हैं अमेज़न की, ड्रॉप शिपिंग की, प्राइवेट लेवल की, होलसेल की, ऑनलाइन वर्ड के ऊपर शॉपिफाई की, ये सारी ट्रेनिंग हासिल करके तो अब इनको ला रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर कि भाई सारी दुनिया ऑनलाइन नहीं चले गई, अभी ज्यादा वो है जो ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं। बिजनेस वाली साइड पे आओ, ट्रेडिशनल बिजनेस भी हम उनको सिखाने जा रहे हैं। आप जो है ना वो ट्रेनिंग हासिल करके ही हमारे साथ जो है ना अब ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ आएंगे। तो बच्चों अंकल कह रहे हैं कि भाई बिजनेस अच्छी पैसा है और बिजनेस सुन्नत भी है। हाँ, बिजनेस करने जाना है ना तो अपने आप में जो उनसे मेन फैक्टर है ना रेसिपी के, उसमें एक ईमानदारी भी है, ऑनेस्टी भी है। जिस काम के अंदर, जिस चीज के अंदर हमारे पाकिस्तान का लैक हो रहा है, हमारे बच्चों की थोड़ी सी उसके ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है कि कोई भी काम करो तो नियत नाल करना चाहिए, तो ईमानदारी नाल करना चाहिए। तो फिर देखना अल्लाह पाक की जात उसमें आपको कितना जो है सक्सेस देती, रिजल्ट देती, बेईमानी वाला नासर ना हो। तो अब आपको अंकल ने अपनी एक लाइफ का निचोड़ 2 लफ्जों के अंदर जो है ना उन्होंने बयान किया है। मेंटोर और लीडर जो उनसे होते हैं ना, चैंपियन, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता हमवार करके दे सकते हैं, लेकिन करना आप ही पैना जे, ठीक है। और जो आपकी एक नेचर होगी, जो आपकी एक सेंस होगी, जो आपकी एक ग्रोथ होगी, जो आपकी एक लर्निंग होगी, आपकी इन्वायरमेंट की टीचिंग होगी, वही आपकी कल को एक तबीयत, मिजाज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वही आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में बनेगी। और उससे इन्फ्लुएंस ना सिर्फ आपके नजदीक वाले होंगे, बल्कि जिस कौम के साथ आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्शन पाला वाह पेगा ना, तो उनके लिए आप अपनी कंट्री के एम्बेसडर होगे। तो आप सिर्फ मोहम्मद अली, मजहर, अजहर या जमशेद ये नहीं होगे, आप पाकिस्तानी होगे। तो अगर किसी के साथ अच्छा किया तो उसने कहना कि यार पाकिस्तानी बड़े अच्छे होते हैं, अगर किसी के साथ बुरा किया ना तो कहेंगे यार पाकिस्तानी बड़े बुरे होते हैं। सो इन चीजों को आपने जो है ना सिर्फ समझना है बल्कि चितना भी है और कोशिश करनी है कि भी जिंदगी में हर चीज की बुनियाद जो है ना वो आपने ईमानदारी के ऊपर रखनी है। सो सबसे पहले तो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया
कि भी एक तो आपके साथ सफर भी था, सफर माशाल्लाह अच्छा भी गुजरा, और अच्छे के साथ साथ हमने जो बच्चों को टीचिंग दे दी है ये आपकी टेस्ला गाड़ी से शुरू करके, ये मैं कहता हूँ कि भी अल्लाह पाक की ज़ात इसमें बरकत डाले, ये और हमारा एसेट भी बने, हमारा सासा भी बने, और हमारे लिए ये सदका जारिया भी बने, और हमारे बच्चे इससे सीख के अपनी जिंदगी में बेहतरी लाएं, इंप्रूवमेंट लाएं। हम सिर्फ सियासतदानों को कसूर ना दें, हम सिर्फ जजों को कसूर ना दें, हम सिर्फ मौलवियों को कसूर ना दें, मोटिवेशनों को कसूर ना दें। हम सबसे पहले अपनी तो पॉलिश करें ना, अपने आप के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करें, और जब अपने आप के ऊपर इन्वायरमेंट हम चेंज करेंगे, हमारी एक आप कह लो यूथ का विजन मिशन टारगेट चेंज होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली मुल्क भी चेंज हो जाएगा। और अल्लाह पाक की ज़ात कहती है कि जिन्हें कौमां ने आप अगे होकर खुद नन्या करने की कोशिश की थी, तो मैं भी उन्होंने दूसरी कौमां मुसलत कर देना। तो ये आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है हालात इसी तरह है। सो चैंपियन, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी एग्जीबिशन में, और जो अब वंस प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया, और हमारी टीम जो है वो एक्सप्लेन करेंगी कि आपने उनको किस तरीके से यूके मार्केट में टारगेट करके तो सेल करनी है। इसके लिए पूरे फॉर्मेट जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, डेली की जो ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं। वंस कॉमर्स का जाके आप फेसबुक का जो ग्रुप है उससे ज्वाइन करो, और वहाँ से ये सारी जितनी भी टेक्निक्स ऑफ सेलिंग ऑनलाइन है वो सीखना शुरू करो। मैं हूं मदर शफीक, आपका बिजनेस क्रिएटर। अल्लाह हाफिज़।